Hello, Vishal. Chalo guys, if we are targeting CAT 2023, we have this offer for you. Extension भी है और discount भी है. So 8 months, 6 plus 2, 8 months, you can get it 20.9K. And Iconic में जाओगे तो 6 plus 2, good afternoon Vishal, 30.4K. But this offer is valid only till 24, 2 days from now. Oh, don't forget to attempt this scholarship test. Okay. June 25 को scheduled है, 2 slot है, 12 and 5. Attend anyone. 60 minutes का test है, 30 questions. And we have some exciting rewards. In case you are you score some real nice percentile. और एक कैट टीचर प्रोग्राम भी है. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक एंड इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू अन अकेडमी प्लस अन अकेडमी आइकनिक फॉर 1 ईयर और किसी भी आई में सेलेक्ट होते हैं तो इंटायर 100% मनी विल बी रिफंडेड. नॉट ओनली दैट, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं आई में तो वी एक्सटेंड इट फॉर 1 more year. फटाफट बैचेस देख लेते हैं एक बार. बैचेस वी आर ऑफरिंग अ बैच ऑन 29 June को वी आर स्टार्टिंग अ बैच. We started 2 batches already on 15th June, one for 23, one for 24. Be a part of any one of it and start your journey for CAT 2023 or 2024. चलो विशाल, कैसे हो ये बताओ. Welcome Divyanshi. Divyanshi, you were absent yesterday. You were not present na? Yesterday. देख लिया वीडियो या अभी पेंडिंग है. चलो वेरी नाइस. अच्छा मैंने बोला था एक लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स. 120 130 हो गया ना. एक दो मिनट और रुकते हैं एंड देन विल डिस्कस द सेट फॉर द डे. Meanwhile, if you have any query, feel free to ask. Meanwhile, if you guys have any sort of query, feel free to ask. Welcome, Nidhi. चलो ठीक है, let's start. So, what try answering these set of questions. 26 तक हम निकल कर लिया था क्लास में. Read it out and try answering these set of questions. I'll give you like 8 minutes to start with, or maybe 7 minutes. चलो try करो इसको.
Welcome, Anish. Welcome, Nishka. Still, you guys do answer only this question. Okay, एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन था, चार क्वेश्चन था. I want you to answer the first one only. So 215, Divyanshi, it seems 215 is not the right answer to that. Vishal, even 365 is not the right answer. So time's up. Time's up. Okay. एक मिनट और देना. I'll mention the values. Okay, sorry. क्या कर रहे हो सर?
एक के ऊपर 26 ही होगा। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 1 to 5, ये 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, एक के ऊपर 26 ही होगा बेटा, उसके ऊपर 51। राइट राइट राइट, मैंने ना ये गलती से लिखा, बिल्कुल गलती से। 25 तो पीछे है, एक के ऊपर 26, 27, 28, 29, 30, ये 76 से ये आ गया 100, and this is 101, 102, 103, 104, 105. Okay, and this is 121, 122, 123, 124, 125. I hope आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, if you guys have read the question, 125 is small but identical cubes are labeled 1 to 125, and large cube is built by placing the cubes in the following mentioned manner. Okay, using the small number cubes in ascending order. Okay, 1 से लेके 5 तक, and then 5 by 5 by 5 का क्यूब बनाया है। हर एक लेयर पे 25 होंगे। फर्स्ट लेयर पे 1 से 25, सेकेंड लेयर पे 26 से 50, ये 26, उसके पीछे वाला लेयर 31 से शुरू होगा, फिर 36 से, ये 41 से, ये 46 से, यहाँ भी मैंने गलत लिखा है, ये 46 से शुरू होगा, ये 46 से शुरू होगा, ये राइट, और उसके बाद 46 से 50, 51 से 55, ये 71 से शुरू होगा, 75 तक जाएगा, एंड देन 80, और ये हो जाएगा आपको 71 से 75, 76 से शुरू हो जाएगा, एंड दिस वुड बी 96, एंड देन दिस इज 121, राइट, दिस इज 121। चलो, ये क्यूब का अरेंजमेंट आपको समझा? ये क्यूब का अरेंजमेंट क्या है? बॉटम लेयर पे कितने आएंगे? बॉटम लेयर पे 25, bottom layer पे 25 cube. This is what is mentioned. The bottommost layer is laid first, and then the layer just above it, and so on. In each horizontal layer, the front row is laid from left to right. Then the cubes are laid in the similar pattern in the next row. So 1 to 5 हो गया bottom layer का front row. Second row bottom layer क्या हो गया? 6 to 10. Third 11 to 15. Fourth 16 to 20. Last 21 to 25, and so on. ये बढ़ता जा रहा है। ये क्यूब का अरेंजमेंट सॉर्टेड है? तो बताओ, समझा? डाउट है तो लिखो #डाउट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूब इस तरीके से अरेंज्ड है। चलो गाइस, फटाफट मना 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 रितिका, गुड आफ्टरनून। मुस्कान, रितिका, ज्वाइन कर लो अन अकेडमी _ आशीष टेलीग्राम चैनल, ठीक है? वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? अभी ये हो सकता है आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फोकस करोगे तो, क्योंकि इसका किसी और से कोई रिलेशन नहीं है। ये हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्लासेस के लिए ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। चलो, ये सॉर्टेड है। अब देखो, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स दैट फॉर्म डायगोनल कनेक्टिंग राइट बॉटम कॉर्नर cube and of the front face and the top left corner cube of rear face. किसकी बात हो रही है? राइट बॉटम कॉर्नर क्यूब ऑफ फ्रंट फेस, किस क्यूब की बात हो रही है यहाँ पर? राइट बॉटम कॉर्नर क्यूब ऑफ फ्रंट फेस, किसकी बात हो रही है? फिफ्थ की बात हो रही है। यस, एंड डायगोनल कनेक्टिंग,
डायगोनल कनेक्टिंग, ये कौन सा क्यूब है? टॉप लेफ्ट क्यूब ऑफ रियर फेस, वन 121, यहां से लेके डायगोनली, ठीक है। सो 5, 29, 53, 77, 101। ओके, टर्म्स निकाल के ऑब्वियसली कर सकते हो। इसका एक और मेथड क्या है, ठीक है, आप क्वेश्चन को फील करो, मतलब अगर इसके अप्रोच की बात करो तो आप किसी भी डायगोनल से किसी भी डायगोनल पे जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ, वर्टिकल जाओ, किसी भी लेयर से हॉरिजॉन्टल जाओ, किसी भी लेयर से वर्टिकल जाओ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कि यहाँ से शुरू किए और वर्टिकली यहाँ तक आ गए, नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, डायगोनली सब कुछ जाओ, you will come across 5 cubes. You will always come across 5 cubes. जैसे अगर इस कॉर्नर से भी इस कॉर्नर पे चले गए, you will come across 5 cubes only, neither more than 5 nor less than 5. बोलो yes sir. You will come across 5 cubes, and numbers on those 5 cubes will always form an AP. Numbers on those 5 cubes will always form an AP. Okay. तो अगर आप कैसे भी करके पहला टर्म आपने निकाल लिया, दूसरा टर्म निकाल लिया, तो कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन कर सकते हो। जैसे दिव्यांशी ने पहला 5 लिखा, उसके बाद 29 लिखा, द डिफरेंस इज हाउ मच? 24। तो आप 24 ऐड करते जा सकते हो, 53, 77, 101। दे विल ऑलवेज फॉर्म एन एपी, ठीक है। और इसका सम आप लोग निकाल सकते हो। एपी का सम क्या होता है? n/2 2a plus n minus 1d। एपी का सम क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 2a plus n minus 1 into d। एक और इसको लिख सकते हैं ना, n/2 a plus n minus 1d। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकते हैं। बोलो हाँ जी। तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे तो कितना आ रहा है ऐड करने पे इन पांचों को? कितना आ रहा है? ऐड करो। 255 would be the answer. 255 would be the answer. 255 किसी ने नहीं दिया था ना, या दिया था? 255 किसने दिया था या नहीं दिया था? दिव्यांश आपने 255 बोला था, राइट। 255 would be the answer. आप एक और अप्रोच लगा सकते थे, 53 into 5 265, हाँ 53 into 5 250 plus 265। ओके, आप ये भी कर सकते थे, एवरेज और मीन क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? एवरेज और मीन इज नथिंग बट सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आपका अगर ये 5 है, ये 121 है, ये आपने फिगर आउट कर लिया, लेकिन दूसरा टर्म फिगर आउट नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है आपको। पहला और लास्ट आपने 5 एंड 121 ये आपने फिगर आउट कर लिया, लेकिन अब दूसरा निकालने में डिफिकल्टी हो रही है कि विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है अगर, तो आप क्या कर सकते थे? 5 टर्म है ना, मिडिल टर्म वुड बी द मीन। मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, 53 एवरेज निकलता है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, एपी फॉर्म कर रहा है, तो मिडिल टर्म इज द मीन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 121
प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, एक मिनट देना बस। चलो हाँ, तो ये एवरेज मीन क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 5 है, 121 है। व्हाट इज द मिडिल मोस्ट टर्म, व्हाट इज द मिडिल मोस्ट टर्म, अरे नहीं 63 होगा ना, हमारा वहां 53 कैसे आया था, एक मिनट 53, ओह wait, top left corner of the rear face, top left corner of the rear face is not 101, sorry, it is not 101, it is 121 na, it is 121, it is 121, bottom right front face, top left rear face, this is 121। सो आपको आपको उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उस तरीके से आप जाओगे तो 5 से स्टार्ट करना है और 5 के बाद 29 ने हमने क्या डिफरेंशियल ने क्या लिखा था, एक मिनट जो मैंने भी ध्यान, 5 29 50 नहीं 29 नहीं ना, 29 नहीं 29 नहीं 29 के पीछे वाला, 29 के जस्ट पीछे वाला चाहिए, 29 के जस्ट पीछे वाला, 29 के पीछे 5 ऐड कर दो, 29 5 34। ठीक है, अब इसमें क्या कर लो, वापस 29 ऐड कर दो 63, इसमें वापस 29 ऐड कर दो, नहीं क्या वापस 29 ऐड कर दो, वापस 29 ऐड करो, ये हो जाएगा और 92 एंड 121, ये होगा हमारा, ये होगा हमारा टर्म्स, ये होगा हमारा टर्म्स, यस। और इसका सम क्या रहा है, इसका सम ऐड करोगे तो जो भी आएगा वो होगा आंसर। और अगर ये टर्म निकालने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप यूज कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला, एवरेज और मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। आपको निकालना है सम ऑफ टर्म्स, आपको निकालना है सम ऑफ टर्म्स। एवरेज और मीन इज हाउ मच, आपको 5 दिख रहा था, आपको 121 दिख रहा था, तो एवरेज और मीन निकल गया। सम निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, तो 63 क्रॉस 5, sum would be 315, either way you go 315 would be the answer, not 255 265, 315 would be the answer। bolo yes sir, either way you go 315 would be the answer। चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, what is the sum of the number of the cubes in vertical column which has its base in the third cube from the left in the row immediately behind the front row of the bottom layer। किस क्यूब की बात हो रही है बताओ,
किस वाले क्यूब की बात हो रही है? वर्टिकल कॉलम विच हैज इट बेस इन द थर्ड क्यूब फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो immediately behind the front row of bottom layer. Which one, Divyanshi? Last one. Last one. Okay. देखो. Right bottom corner cube. Right bottom corner cube of front face. This is my front face. This is my front face. Bottom right. This is it. Front face, bottom right. This one is the cube. ठीक है? Starting cube. End cube क्या है? Top left corner cube of the rear face. This is my front face. Which one is my rear face? ये ना. This is my rear face. पीछे जो दिख नहीं रहा है. Rear face. उसका टॉप लेफ्ट पे क्या है? उसके टॉप लेफ्ट में क्या है? 121. राइट. चलो अब देखो, तो पहला क्यूब है 5, लास्ट क्यूब है 121, बीच में 3 और क्यूब आएंगे. ओके, विजुअलाइज करो. ठीक है, विजुअलाइज करो. इधर से आया, ठीक है, और सेकंड लेयर में, फर्स्ट लेयर में जो ग्राउंड लेयर है, फर्स्ट लेयर है, उसमें इसमें आ रहा है क्यूब नंबर 5 इस वाले रो में. सेकेंड लेयर पे जब जाओगे, सेकेंड लेयर की बात करोगे, तो किसमें आएगा बेटा? इसमें आएगा ना. थर्ड लेयर में इसमें, फोर्थ लेयर में इसमें, फिफ्थ लेयर में इसमें, वो क्यूब जो इस डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रहा सेकेंड लेयर में, क्योंकि वो डायगोनली जा रहा. और इसमें कौन सा होगा? फोर्थ क्यूब होगा ना. ये फिफ्थ क्यूब इस कॉलम में, फिर फोर्थ क्यूब यहाँ, थर्ड क्यूब यहाँ, सेकेंड क्यूब यहाँ और टॉप क्यूब यहाँ. इस वाले लेयर में फोर्थ क्यूब कौन सा है? व्हाट इज दिस? दिस इज 31 ना. दिस इज 30, दिस इज 31, 31, 32, 33, 34. 34th वाला नंबर we have to consider in second one, and now you can form AP. by the same logic आप यहाँ भी कर सकते हो. 51 है तो 56 होगा, 61 होगा, थर्ड क्यूब 61, 62, 63. ठीक है, ये आप. और अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हम, तो हम क्या कर सकते हैं? वी नो द थीम की इट हैज टू बी इन एपी. आप निकाल लो मिडिल टर्म, मीन निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, you will get sum. The other method. समझा? अभी कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क. कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क. चलो एक बार वापस से ट्राई करना. अब ये किसकी बात हो रही है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन क्यूब्स इन द वर्टिकल कॉलम. एक तो वर्टिकल कॉलम में होना चाहिए, वर्टिकल कॉलम होना चाहिए. ठीक है, मतलब 5 क्यूब वर्टिकली, डायगोनली नहीं, वर्टिकली. ओके, इसका बेस वाला क्यूब कौन सा है? थर्ड क्यूब फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो इमीडिएटली बिहाइंड द फ्रंट रो. फ्रंट रो ये है, दिस इज माय फ्रंट रो. इमीडिएटली बिहाइंड दिस कौन सा रो है? ये वाला रो है, 6 वाला. इमीडिएटली बिहाइंड दिस 6 वाला रो है. थर्ड क्यूब इन दैट, थर्ड क्यूब इन दैट. मतलब हम किस नंबर की बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूब नंबर 8 की बात कर रहे हैं. मतलब दिस इज 8. ओके, अब ये टॉप पे क्या आएगा? टॉप पे क्या आएगा? हम इसकी ये क्या है? वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन ना. व्हाट इज दिस नंबर? व्हाट इज दिस नंबर? व्हाट इज दिस नंबर? 123. Nope. Vertical column.
वर्टिकल कॉलम है, तो ये वाला क्यूब 123 नहीं ना बेटा, 101 से 105 ये है, दिस इज 101 से 105, 16 to 110 है ना ये सेकंड में, थर्ड में 111 to 115 है, फोर्थ में 116 to 120 है, यहाँ पे 121 to 125, दिस इज 108, 8 to 108, 8 to 108, 8 से 108, नहीं समझ रहा निधि? टॉप लेयर पे 101 से 125 तक है, टॉप लेयर पे 101 से 125 तक है ना, फर्स्ट लेयर में फर्स्ट रो में 101 से 15, सेकंड में 106 से 110। अगेन आप चाहो तो टर्म सारे निकालो, नहीं तो हम हमारे स्टैंडर्ड मेथड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं? मीन क्या हो जाएगा इसका? 116/2, 54, 58 वो मीन हो जाएगा ना, 58 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना? 290, 58 मल्टीप्लाइड बाई 5 290, सेकंड का सम इज 290, फर्स्ट का सम वाज 315। चलो अब 30 भी इसके जैसा ही है ना, 30 29 करेंगे हम लोग, ठीक है। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द क्यूब फॉर्मिंग डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट क्यूब इन फ्रंट रो थर्ड लेयर, किसकी बात हो रही है? लेफ्ट मोस्ट क्यूब ऑफ द फ्रंट रो थर्ड लेयर, थर्ड लेयर विशाल, थर्ड लेयर बेटा, थर्ड लेयर, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, थर्ड लेयर का लेफ्ट मोस्ट क्यूब ऑफ द फ्रंट रो, लेफ्ट मोस्ट क्यूब ऑफ द फ्रंट रो, थर्ड रो का, थर्ड लेयर का फ्रंट रो इज दिस वन, इसमें लेफ्ट मोस्ट इज दिस वन, 51, बात हो रही है 51 की। और सेम लेयर में राइट मोस्ट रियर रो, सेम लेयर में, इसी लेयर में सबसे लास्ट वाले रो का राइट मोस्ट, किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? 75 की बात हो रही है, यस। ओके, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 315। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 315। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का भी वही आंसर होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इस वाले 5 से जो शुरू हो रहा है, सॉरी 5 से जो डायगोनल शुरू हो रहा है 121 पे जा रहा है, उसका जो मीन है, मीन कौन सा है? बॉडी के बिल्कुल सेंटर में जो क्यूब है 63, और इसका जो मीन है 51 से 75 का जो मीन है, थर्ड लेयर है, बीचों बीच सेम 63 ही आ रहा है ना, वो भी 63 ही है, इसलिए 63 into 5 315। समझ रहे हो गया? यस सर। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 315। एंड ध्यान रखो, अगर नंबरिंग वाला क्यूब आया तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द क्यूब दैट आर नॉट विजिबल? इसका आंसर क्या होगा? अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा लगता है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द स्मॉलर क्यूब्स दैट आर नॉट विजिबल? ओके, अच्छा, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट विजिबल? टेल मी। How many cubes are not visible? Total 125 cube है, 125 cube है, dimension is 5 by 5 by 5, not visible 3 by 3 by 3, 27, 27 cubes visible नहीं है, उनका सम बताना है। 27 cubes visible नहीं है, उनका सम बताना है। टॉप लेयर हर तरफ से निकल जाएगा,
टॉप प्लेयर हर तरफ से निकल जाएगा। यू गाइस वांट टू गिव इट अ ट्राई? कितना टाइम दूं इसके लिए बोलो? 2 मिनट दूं? 2 मिनट देता हूँ, गिव इट अ ट्राई। ओके, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, गिव इट अ ट्राई। 2.5 150 सेकंड्स दे रहा हूँ, ठीक है? गिव इट अ ट्राई। 27 क्यूब्स which are not visible, उन पे जो नंबर्स है उनका सम क्या है? This is what is desired. Last 50 seconds. वन फाइव फोर एट कैसे किया दिशा? लास्ट 5 seconds, टाइम्स अप। चलो, कितने लोग अटक गए नहीं समझ रहा? कोई है? निशिता, दिव्यांशी, निधि, क्या स्टेटस है? डिडंट गेट इट। ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा मेथड था, बहुत सिंपल सा मेथड था। ट्राई कर, आ जाओ, फोकस करो। निश्चिता आ जाओ, देखो ध्यान दो। सबसे पहला कि अगर आप लोग एक एक टर्म निकाल रहे हो, 27 टर्म्स है, एक एक टर्म निकाल रहे हो, तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? कोई पॉइंट नहीं है, वो ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं, ओके, जहां पे आपको एक एक निकालना हो। एक केस दो, एक केस समझो, ठीक है? 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है? 15 17, ओके? चलो, समझ के लो, ये सारे टर्म्स है, ये सारे टर्म्स है। इनका सम कितना होगा? इनका सम कितना होगा बेटा? इनका सम होगा सर 1 + 17/2 which is mean, ओके, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं 81? यस और नो? ओके, अब इमेजिन करो, इमेजिन करो
कि आपने लेफ्ट से भी एक निकाल दिया और राइट से भी एक निकाल दिया, सिमेट्रिसिटी मेंटेन करिए, लेफ्ट से भी एक निकाल दिया, राइट से भी एक निकाल दिया। क्या ये मीन इनटू नंबर ऑफ टर्म्स क्या चेंज हुआ? मीन चेंज हुआ या नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हुआ या दोनों चेंज हो गए? मीन चेंज हुआ या नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हुए? निधि, मीन चेंज नहीं हुआ, ध्यान दो। अगर आप लेफ्ट से भी एक, राइट से भी एक टर्म निकाल रहे हो तो केवल नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होगा। मीन स्टिल वुड बी 9, mean still would be 9. 3 plus 15 by 2 multiplied by 7. Mean still would be 9. 63 is now the answer. एक और टर्म निकाल दिया दोनों तरफ से, देखो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं अगर आपने इधर से दोनों निकाला तो मीन भी चेंज हो जाएगा, बट इफ यू आर ट्राइंग टू बी सिमेट्रिक इन अ वे, आपने इधर से भी एक टर्म निकाला, इधर से भी एक टर्म निकाला, तो अगेन स्टिल मिडिल मोस्ट टर्म इज द मीन which was 9 earlier, अभी भी 9 ही है। समझ रहे हो what I'm trying to say? इस वाले क्वेश्चन में बॉडी का मीन कहाँ है? इस वाले इनिशियल बॉडी का मीन कहाँ है? सेंटर मोस्ट 63, राइट? जब आपने हर एक तरफ से एक लेयर निकाला, स्टिल बॉडी का मीन चेंज हुआ क्या? नहीं ना, 63 ही मीन है। स्टिल द मीन इज 63, आपने हर एक तरफ से एक लेयर निकाल दिया, still the mean is the centermost body, still which is 63. बस क्या चेंज हो गया था? नंबर ऑफ टर्म्स। the answer was 63 cross 27. the answer was 63 cross 27 which is 1701. so जो इस टाइप के क्वेश्चन का थीम होता है ना, वो एवरेज होता है। आपको एक एक टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि एवरेज कहाँ लगाना है, मीन कहाँ से फिगर आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन, नंबर ऑफ टर्म्स मीन। किसी किसी क्वेश्चन में मीन चेंज हो जाएगा तो मीन फिगर आउट करो। इस टाइप के क्वेश्चन का थीम क्या है? आप एक एक टर्म निकालते बैठे तब तो हो गया काम। अगर वो टर्म का एडिशन पूछेंगे तो 4-5 टर्म देंगे छोटे वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में था, 28 में था। बट अगर बिगर पिक्चर में पूछेंगे तो आपको मीन वगैरह यूज करके, और कुछ नहीं, मीन ही लगता है इसमें, मीन लगा के नंबर ऑफ टर्म्स फिगर आउट करो और सम फिगर आउट कर लो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बार आप पूरी शीट सॉल्व कर लेना, पूरी शीट। मैं ग्रुप पे आपको क्यूब एंड क्यूब प्लस वाले ग्रुप पे क्यूब एंड क्यूबॉइड का प्रैक्टिस शीट आपको भेज दूंगा। लास्ट पार्ट कौन सा पार्ट बेटा निष्ठा? कौन सा पार्ट? देखो छोटू, इंटू 27 वाला, ओके ये अभी राइट नाउ दिस इज अ क्यूब ऑफ 5 by 5 by 5 125, राइट? ओके, जब आप एक एक लेयर हर तरफ से निकालते हो और इसका मीन है 63, जब आप एक एक लेयर हर तरफ से निकालते हो तो नो फेस पेंटेड निकालने के लिए, तो द डायमेंशन ऑफ दैट वुड बी 3 by 3 by 3। आप शायद थे ना कल परसों क्लास में, मतलब क्यूब्स एंड क्यूबॉइड के दोनों क्लास में। तो 5 by 5 by 5 का क्यूब है, और अगर आपको वो वाला क्यूब चाहिए जो अंदर से आ रहा है, विच इज पेंटेड ऑन नन ऑफ इट्स फेसेस, उसका डायमेंशन 3 by 3 by 3, मतलब 27 क्यूब्स होंगे उसमें, मतलब 27 टर्म्स। मीन में अभी भी कोई चेंज नहीं है, मीन अर्लियर वाज 63, मीन अभी भी 63 है। तो आई हैव 27 टर्म्स एंड मीन 63 है। कैसे निकलता है? मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। मीन इज 63 इज इक्वल टू सम, जो आपको निकालना है, सम ऑफ 27 टर्म्स जो आपको निकालना था, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 27, मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, यू विल गेट द आंसर।
चलो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन इन आवर रेगुलर बैच। टिल देन एंजॉय। मैं शेयर कर दूंगा इसका प्रैक्टिस शीट ग्रुप पे।